वहीं गया में पितृपक्ष मेला के 14वें दिन विदेशी पिंडदानी ने भी अपने पूर्वजों को मोक्ष दिलाने के लिए विष्णुपद के देवघाट पर पिंडदान किया। यह विदेशी पिंडदानी यूक्रेन, घाना, रूस, उज्बेकिस्तान, नाइजीरिया, साउथ अफ्रीका और जर्मनी जैसे देशों से आए हुए थे, जो अपने पूर्वजों को मोक्ष दिलाने के लिए पिंडदान करने पहुंचे थे। सभी विदेशी तीर्थयात्री ईसाई हैं, लेकिन हिंदू सनातन धर्म से प्रभावित होकर वे अपने पूर्वजों का पिंडदान करने पहुंचे थे। विदेशों में, खासकर यूरोप में, सनातन धर्म के प्रसार के लिए कार्य करने वाले लोकनाथ गौड़ के मार्गदर्शन में सभी विदेशी तीर्थयात्रियों का पिंडदान कराया गया। कर्मकांड के दौरान सभी विदेशी तीर्थयात्री महिलाओं ने भारतीय महिलाओं की तरह ही कपड़े पहने, वहीं पुरुष तीर्थयात्रियों ने धोती पहना। इसके बाद सनातन धर्म के सभी नियमों का पालन कर श्राद्ध कार्य किया गया। पिंडदान का अनुष्ठान पूरा कर विदेशी तीर्थयात्री काफी खुश दिखे। इसके पहले सभी विदेशी तीर्थयात्री भगवान बुद्ध का दर्शन करने विष्णुपद पहुंचे। उन्होंने देवघाट सहित मेला क्षेत्र का भी भ्रमण किया। आचार्य लोकनाथ गौड़ ने बताया कि ये सभी तीर्थयात्री ईसाई धर्म को मानते हैं। सनातन धर्म से प्रभावित होकर इन लोगों ने अपना नाम तक बदल लिया है। इसके बाद यहाँ किसी ने अपने पति का, तो किसी ने पिता का, तो किसी ने भाई, बहन, पत्नी आदि का पिंडदान व तर्पण किया। साउथ अफ्रीका से आए एक विदेशी तीर्थयात्री ने बताया कि उन्होंने सनातन धर्म के बारे में जाना। इसमें पूर्वजों के प्रति श्रद्धा प्रकट करना भी है। यही कारण है कि वह वृंदावन से गया पहुंचे और फिर उन्होंने अपनी बहन और अन्य पूर्वजों का पिंडदान किया। My name is Vishnu Das. I am from Nigeria, but I've been staying in India for the last 8 years. Myself and my friends have come from various parts of the world to Gaya to offer oblations of pinda, food, and udaka, water, to our ancestors. It is the tradition of the Vedic civilization that at least once in a year during Pitru Paksha, you offer these oblations to your ancestors. The idea is that the ancestors might be suffering in Yamaloka or Matyaloka. They may not have a body yet. They might be roaming as Bhuta, as a spirit, right? So when you make those offerings to appease them, then those who are suffering in Matyaloka, they will get a human body, or they will go back home, back to Godhead. And those who are trapped in the spirit body, they are not in Matyaloka, they are not in heaven, they will become embodied. This is the tradition. So now we have come to Gaya to offer this offering, specifically because here in Gaya, Lord Vishnu has his feet here, right? Lord Vishnu appeared here to kill the demon called Gayasura. So with his feet, he stepped on Gayasura, and therefore that place became Vishnupad. Excuse me. Please tell me, you have lost any ancestral during your life? Do I? During your life, Uh-huh. you have lost any ancestral? Everybody in this world has lost an ancestor. Everybody. I'm asking to about you. You have lost any ancestral? Of course, everybody has lost. When you have lost? I lost some like 10 years ago. There's so many years. Your ancestors are those who are your family members who have departed. So everybody here has lost somebody. Do you think in Vedic Shastra? Yes. Do you believe in Vedic Shastra? That is why I'm here, sure. What is written about the Pitrupaksh? In Srimad Bhagavad Gita, it is said that those who offer oblations to the ancestors without considering that they are offering to Lord Vishnu or to Lord Vishnu, they will go to the abode of the ancestors. So we who have come here, although we are offering this oblation to the ancestors, we are first offering to Vishnupad and then to the ancestors. What's your name? My name is Vishnu. कि किसी न किसी तरह से जो अपना पितरों का जो है उद्धार हो जाए, बल्कि ये लोग सनातन धर्म को स्वीकार कर चुके हैं। सनातन धर्म का जो पहला जो उसका स्टेप है, अपने पितरों का उद्धार हो जाए, उसके बाद में ही देव कार्य होगा।
पितृ कार्य के बाद में ही देव कार्य करने का अधिकार मिलता है, ये हरिवंश पुराण में दिया है। और जब तक पितृ कार्य का इनकी मनोभाव दशा जब ये ऑफरिंग कर इन रहे सब थे। लोगों ने अपने मुस्लिम धर्म, जैसे अफ्रीका के है, उन्होंने अपने मुस्लिम धर्म सभी छोड़ दिया उन लोगों ने। अच्छा अच्छा। अभी उन लोगों ने बोला इससे और बड़ा धर्म है कौन सा, जो मैं जीवित रहते हुए भी मैंने पिता का इतना सेवा कर नहीं पाया, तो मरने के बाद भी मैं यदि इतना सेवा कर पाता हूँ, इससे और बड़ा कौन सा धर्म हो सकता है बोलते।